नमस्ते, मेरा नाम है आयुष टंडन. I am an actor, singer, not so famous yet, but yeah, I've been a part of some decent projects which bring me on this stage today. I come from the city of dreams, Mumbai, से थोड़ा सा दूर, from a beautiful town called Vasai. Born to parents who are closely associated with the world of art, my dad being an actor, dancer, and an events organizer, and mom being a singer and a homemaker. I was drawn into this field unconsciously. वो कहते हैं ना कि आम के पेड़ पर सेब नहीं लगते. कहते हैं कि आम के पेड़ पर सेब नहीं लगते, फिर उस पेड़ की जड़ों को तेरे सपने फरेब नहीं लगते. तो मेरे अपनों को भी मेरे सपने फरेब ही नहीं लगे. There are very few memories from our childhood that we recollect. One such memory for me is this very small incident that took place when I was in primary school. Our class teacher asked us students to come up with an answer for what you want to become in life when you grow up the next day. I had a very clear answer. I had already started working by then. I shot for my first ad film when I was 5 or 6 years old. So after the school hours, I told my friends that I want to be an actor. I want to be on the big screen. Most importantly, I want to be famous. कि हर कोई मुझे जाने पहचाने प्यार करे. बस. Everyone laughed at me, which made me nervous to answer the same in front of the teacher. So the next day I said I want to be a pilot. But I was very clear मैं क्या कर रहा हूँ life में. I worked in several other ad films. लोगों को ऐसा लगता था कि छोटा है, cute है, he's doing ad films. बड़ा होगा तो he'll change his mind, he'll change his field. But clear aim था मेरा. I was also auditioning for the biggest dance show of that era. Kept giving auditions, but TV rounds तक I couldn't make it. कभी नहीं. Practice करते रहा dad के साथ. Finally I cracked it. I was on the show Boogie Woogie. It's a big thing. It was a surreal moment. It was probably the only dance show of India at that time. Couldn't win it. Emerged as a learner. I remember I was traveling back home after getting eliminated in a bus with my mom, dad. I was sitting at the window seat, ऐसे imagining myself in a sad music video, जैसे हम सब करते हैं at times when we are low. I told myself that I have to win a show on TV. ऐसे नहीं हो सकता कि यार मैं एक शो से बाहर हो गया और मेरी हिम्मत हार गई. I have to do this. And my parents always guided me that अगर तुम्हें इस फील्ड में कुछ अचीव करना है, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. बिकॉज तुम एक आउटसाइडर हो. तुम्हारे पास कोई लॉन्च पैड लेके नहीं आएगा कि चलो बेटा तुम बड़े हो गए हो, बढ़िया एक्टिंग कर लेते हो, चलो आओ लॉन्च करते हैं. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. आई रिमेंबर डैड टोल्ड मी कि जो तुम चाहते हो कि पूरा इंडिया तुम्हें देखे, पहचाने, प्यार करे, वो इतना मुश्किल है. इट वुड बी लाइक, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि लोहे के चने चबाने से भी ज़्यादा मुश्किल होगा इसे क्रैक करना. सो आर यू अप फॉर इट? लाइक या श्योर. As a 8, 9 year old kid, to be on a crossroad where you have to choose between a road which is so much joyful, you get to play, you get to chill with friends after school, after tuitions, or to go give auditions, stand in long queues of 4 to 5 hours and get rejected most of the days and see success only once in a while. The probability is like you give 100 auditions and you get selected for one. So I obviously chose the road which was comparatively tough. They say a smooth sea never made a skillful sailor. I was ready to sail, no matter how hard the voyage would be. But my parents never forced me to work, they only guided me. I always had the option to say no to it. Ki, not interested in this, but I did this because I wanted to do it. After a few years, uh, I was offered a show called Chota Packet Bada Dhamaka, थोड़े ही time बाद. Or the show's format was it brought together duos where one partner was a dancer, the other was a singer.
We participated in that show. I won that show. It was the best feeling in the world. But हुआ ऐसा कि वो एक comfort zone बन गया. TV, the journey, started getting many offers. बहुत अच्छा लगने लग गया सब कुछ. तो सोचा कि इसे कंटिन्यू करें या शुड आई फोकस ऑन द ड्रीम, द ओजी ड्रीम जो हमेशा से बचपन से सोचा था कि बड़े स्क्रीन पे दिखना है यार. बट उसके लिए कंफर्ट डिच करना पड़ता. ठीक है, कंफर्ट को डिच कर दिया. स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड फोकसिंग ऑन दैट ड्रीम. और ऐसा नहीं कि आई सैक्रिफाइस माई चाइल्डहुड कंप्लीटली. आई हैव द बेस्ट मेमोरीज growing up. I have the best school memories. I balanced my life in a way that I used to work 4 days, go give auditions, do all the hard work, and 3 days I used to keep for myself कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा. I'll just enjoy. So ये रहा. My dream of seeing myself on 70 didn't come true so easily. मैं auditions देता रहा. And by the way, I have no training in acting, no theatre background, nothing. मैंने जो भी सीखा है पहले अपने मॉम डैड से सीखा है घर पे, और उसके बाद रिजेक्शंस फेस करके सीखा है. ऑडिशंस में आप जाते हो, यू मीट न्यू पीपल, यू मीट पीपल, और उनसे आप एक्टिंग टिप्स लेते हो, देखते हो उन्हें ऑडिशन देते हुए कैसे कॉन्फिडेंटली दे आर वर्किंग. तो वैसे मैंने सीखा. और मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में सिलेक्ट भी हो जाता था. बट सैडली दोज प्रोजेक्ट्स नेवर गॉट मेड फॉर सम रीजन्स. चलते रहा ये सिलसिला. एक प्रोजेक्ट तो शूट हो भी गया विद एन ए लिस्टर ऑफ बॉलीवुड, बट इट डिड नॉट गेट अ रिलीज फॉर मैनी मैनी ईयर्स. तो करियर के शुरू में ही जब आप ये चीज़ देख लेते हो तो इट इट मेक्स यू हार्ड, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. फाइनली आफ्टर क्रॉसिंग लाइक अनकाउंटेबल हर्डल्स एंड द रेजिलियंस, I got my debut on 70 with the film Saath Khoon Maaf. The genius director Mr. Vishal Bhardwaj ji and his team. Soon after that, I was blessed with the biggest opportunity of my life, the best film of my career so far, which won 4 Oscars, Life of Pi, with the legend Mr. Ang Lee and his team. उसकी भी फनी सी एक स्टोरी बताऊंगा कि एक लेजी संडे था, ऐसे ही मेरे प्लान्स थे कि खेलेंगे कूदेंगे दोस्तों के साथ, मज़े करेंगे. एंड आई गेट दिस कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर. मेरे डैड से बात किया, उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ऑडिशन दे दो. वो डिटेल्स आपको पूरी बताते नहीं, दे कीप इट कॉन्फिडेंशियल अंटिल यू आर सिलेक्टेड. सो बोला कि फॉरेन कंट्री में शूट होगा. सो आई वॉज हाइप्ड अप. बच्चों को जैसे होता है कि यार फॉरेन ट्रिप हो जाएगी, फ्री में जाओगे आप, शूट करोगे, ठीक है, फिल्म रिलीज हो ना हो देखा जाएगा. I went for the auditions. I got एक राउंड क्लियर हो गया मेरा, और एक राउंड हुआ वो भी क्लियर हो गया. Then I was called to Taiwan to meet Ang sir, the director, and his team. Before going to meet him, I was told by the team that you have to tell him when he asks you that what's your favorite subject, you have to say mathematics, because they are trying to find a kid जो पाई का रोल करेगा to be good at maths. But I shrugged it off. I was a very mischievous child. I mean, I still am, but तो मैंने उसको shrug off कर दिया. मैं भूल गया. मैं गया उनको मिलने. कुछ questions हुए. Then he asked me, "What's your favorite subject?" I said, "Sir, history, geography." Like, what about mathematics? Like, I hate it. मुझे नहीं पसंद. He was shocked. He was taken aback. But I don't know. He was maybe convinced by my honesty, my innocence. He selected me for the part, despite of the fact that I look nothing similar to the elder versions of Pi. I had to sit in the makeup chair for 5-6 hours. पूरा makeover होता था to make me look like the elder versions. Life of Pi journey बहुत crazy रही है. उसके लिए I cannot sum it up in this speech particularly. So moving ahead, बाहर इतना हाई सेट हो गया, उसके बाद उसी लेवल का, उसी कैलिबर का I had to work. तो वेट किया अच्छे प्रोजेक्ट्स का, ऑडिशंस देते रहा, एंड फिर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिला, बाजीराव मस्तानी, द लेजेंडरी डायरेक्टर मिस्टर बंसाली. उसके भी मेमोरीज बहुत अच्छे थे. उस टाइम पे तो आई हैड शेव्ड ऑफ माई हेड फॉर द शूट. सो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, सम पीपल ट्राई टू मॉक मी, दे ट्राई टू बुली मी. बट तब तक मैं इतना स्ट्रांग हो चुका था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि मुझे कोई क्या बोल रहा है, द वे आई लुक.
जो इंटरनली जो चल रहा था वही सब मैटर करता था. माई फिल्म जर्नी taught me a lot about myself. इट मेड मी अवेयर. वो ऐसा हुआ कि मैं रब से मिला जब खुद से मिला. मैं रब से मिला जब खुद से मिला, उस सच से मिला जो सबसे जुदा. आई बिकेम वेरी कॉन्शियस अबाउट चूजिंग माई रोल्स. अब सिर्फ फेमस होना ही एक गोल नहीं रह गया था. अब मैं सोचने लगा कि क्या चीज मुझे करनी चाहिए टू बी फेमस फॉर द राइट रीजंस, टू टू मेनली फोकस ऑन satisfying your soul, your purpose. वो आ गया. तो इफ यू लुक एट माई टाइम लाइन ऑफ द मूवीज, यू विल सी दैट बहुत गैप्स हुए हैं उसमें. काफ़ी, कभी 2 साल, कभी 1 साल. इट वॉज नॉट पर्पसली, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट्स. और जैसे मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी होती है कि 100 ऑडिशंस दोगे तो यू गेट सिलेक्टेड फॉर वन. इज दैट टफ. सो मैं उसमें, बट आई डेंट वॉन्ट टू सिट आइडल एट होम. So I thought I should pursue music as well. Another crossroad. I was inclined towards music because of my mom. I had started playing guitar when I was in 7th grade. And also, my dad got me into learning classical music. But people warned me that you shouldn't. You are doing good in acting, wait for good offers, या देखो आपको जो करना है. But music एक अलग world. It's connected to art in general, but आप मत जाओ उसमें. But my parents, my friends, they supported me because उनको मेरी लिखाई में और मेरी बनाई ट्यून्स में भरोसा था. They supported me. और तो मैंने वो रास्ता चुन लिया. मैंने सोचा चलो let's make music now. Made some songs with the obvious expectation and intention to be a rock star as soon as the first song releases. जो कि obviously नहीं हुआ. The songs went well with the audiences, but लोगों ने वही बोला कि you need to work on yourself, करते रहो. उस टाइम पे हिम्मत नहीं हार के ये सोचा कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द व्यूज नाउ. शुरू में सोचा था कि आई डू इट फॉर द व्यूज और वो रॉक स्टार इमेज बनने के लिए. बट वो प्रोसेस में इतना मजा आ गया कि लगा कि शायद एक इंसान भी मेरे गाने सुनता है ना, तो मैं और सॉन्ग्स बनाऊंगा. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग सुन रहे हैं. आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. बट उसको पॉज कर दिया उस जर्नी को थोड़ा सा, कि और थोड़ा सीखूंगा और इम्प्रूव करूंगा. आई विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर. कमिंग बैक टू माई एक्टिंग जर्नी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स फिर मुझे ऑफर हुए, होने लग गए, जहाँ पे क्रॉस रोड्स थे नहीं, बट वो क्रिएट होने लग गए माइंड में. विद द फियर, विद द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी कि लोग क्या कहेंगे इफ आई डू दिस. आई वॉन्ट टू डू दिस. मुझे बहुत पसंद आया रोल. उसमें मैसेज हो या ना हो वो भी मैटर नहीं करता, बट आई फील कनेक्टेड. इट मूव्ड माई इंस्टिंक्ट्स. But should I do it? Should I not? One such role was the short film She. The casting director called me up and said, there's this role which most of the actors in your age group have declined. But do you want to hear me out once? I was like, sure, please. He said, there's this guy who dresses up as a girl for a day. He goes out to experience what a woman goes through in her day to day life. It was based on sexual harassment. I was stunned. I was surprised that why wouldn't actors in my age group go for such roles? I mean, it has such a powerful message. Never mind. I was happily on board for that project. But my family and friends were worried for me कि ये backfire ना कर जाए डिसीजन. कि एग्जीक्यूशन अगर उतना अच्छा ना हो, मैसेज बहुत पावरफुल है, बट अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वैसे, तो इट वुड बैकफायर मिजरेबली. वो एक हंसने का एक पात्र बन जाएगा. मैंने सोचा यार नहीं, मुझे कोशिश तो करनी है. आई शॉट फॉर दैट प्रोजेक्ट. बीइंग अ बॉयज फैमिली, टू सी देयर सन ड्रेस्ड अप एज अ वुमन ऑन स्क्रीन वाज, आई कैन अंडरस्टैंड. तो बट ठीक है, मैंने अपनी की, अपनी चलाई, अपनी सुनी. व्हेन आई केम बैक होम वो शूट करके, आई वाज सो कंटेंट एंड हैप्पी इन माय हैप्पीनेस. But I was so content and happy, but yet so lonely in my happiness. I wanted my parents and friends to be happy and proud about the fact that I did something like this. Comfort zone से बाहर जाके. Which eventually happened. वो release हुआ and it went viral. बहुत अच्छा response आया उसका. और तब फिर मेरे आसपास लोगों को लगा कि he is doing right. वो सही decisions ले रहा है लाइफ में. He'll do fine. He'll be fine. और एक ऐसा प्रोजेक्ट आया मेरे पास. सो ड्यूरिंग द पैंडेमिक देयर वाज अ राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ वेब शोज.
In my web show journey, I came across the series Kaisi Ye Yaariyan. When I read the part, I was taken aback. वही डर, वही कि ये कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हो गया अब, इसको कैसे करेंगे? Uh, it was similar to the short film in a way that I had to dress up as a woman again on screen, but for a very different purpose, for a very different cause now. For a message this time that live and let live, to respect everyone. I did that role to represent a non binary person on screen who's been suffocating his identity. He wants to come out and he chooses such a big platform to do that. It was overwhelming for me. All my roles have been that way. All my roles, they take away something from me and they give me something. कुछ खामियां पूरी कर जाते हैं और कुछ अच्छी चीजें दे जाते हैं. Like, it takes out life out of me to give life to art. So मैंने अपना म्यूजिक का जर्नी भी फिर से आई रीस्टार्टेड इट, रिलीज सम सॉन्ग्स और लोगों ने कहा कि आई हैव ग्रोन एज अ म्यूजिशियन नाउ, मैं अच्छा कर रहा हूँ. मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें सीखी हैं कि जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग हार्ड, तो जब हमें लगता है कि सक्सेस कब मिलेगा, हम वेट करते हैं, टाइम देखते हैं कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, बट इट्स नॉट हैपनिंग. So I had written one line in my song, which was for love, of course, but it goes well for every situation I feel. कि रब का घर आखिरी मंजिल, एक वो बीज जो वक्त से सींचे, गिरफ्त में उबले रक्त के नीचे, वक्त को जब्त को कभी वक्त ना देखे. टेल योर सेल्फ कंट्रोल, योर सहनशीलता, कि वक्त मत देखो, जब जो चीज होनी है वो तभी होनी है. और मैंने ये भी सीखा अपनी जर्नी में कि एक ये एक्सपीरियंस आ गया कि हम सब एक प्ले का ही पार्ट है यार. आज मैं एक स्पीकर का रोल प्ले कर रहा हूं यहाँ पे, वो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट किसी और के मुंह से वो सुनना हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमें ताकत देता है कि ओके, वी आर नॉट अलोन इन दिस. पीपल गो थ्रू द सेम थिंग्स एंड हाउ दे ओवरकम फ्रॉम दोस आर लर्निंग लेसन्स. तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप खुश नहीं हो, आप वो नहीं हो जो आप खुद को समझते हो और देखना चाहते हो, जैसे यू विल ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू स्विच इट अप. इस बड़े से प्ले में, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्टेज, अ प्ले कॉल्ड लाइफ, भगवान ने बहुत से कंट्रोल्स अपने हाथ में रखे हैं, बट ही गिव्स यू द कंट्रोल्स जब आप क्रॉस रोड्स पे रहते हो, क्योंकि यू हैव द ऑप्शन नाउ, यू स्विच इट अप. वो बनो, वो करो जिसमें आपका दिल खुश होगा, आपकी सोल सेटिस्फाइड होगी. But I can understand there are responsibilities and there are circumstances which pull us away from our passion. But all I can say is that take out some time and energy after fulfilling your responsibilities to give it to yourself, to your passion. और आप वो करो जिसमें आप खुश रहोगे. बस अब जाते जाते यही कहूँगा कि मैं वो नहीं जो दिखाता हूँ, मैं वो नहीं जो दिखाता हूं, ना ही मैं कभी कुछ छुपाता हूं. कुछ वक्त के लिए एक नए किरदार में ढल जाता हूं, कुछ वक्त के लिए एक नए किरदार में ढल जाता हूं. दिल के करीब रहने वालों को ही मेरी अपनी ऊर्जा का है अंदाजा. ये जग तो सारा रंगमंच, मैं आया करने तमाशा हूं.